Okay. So these are the basic questions. The five I have written. We shall make the questions from this. So answer these questions. Do you play cricket? Mm, do you play cricket? Yes, I play cricket. जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए. Simple question है. Are you playing cricket? Yes, playing. Yes, I am playing cricket. Have you played cricket? Yes, I have played cricket. Have you been playing cricket? Yes, I have been playing cricket. Can you play cricket? Yes, I can. I can play cricket. हाँ तो दोबारा से मैं डिड इस्तेमाल कर रहा हूँ पास्ट के. Did you play cricket? Yes, I play cricket. Played. अगर हम ये मैं डिड वाला क्वेश्चन है यस का है तो played कहेंगे. ठीक है. Yes, I played cricket. Were you playing cricket? Yes, playing cricket. हाँ. Were you का आंसर क्या है? What? Were you playing cricket? Past है. अच्छा, were you playing cricket? Yes, इसका है हाँ. did you play cricket? हाँ. Were you playing cricket? Yes, I playing cricket. ओह वर कहाँ गया? Were you? I was. Were you का आंसर है I was. ठीक है. Were you का Yes, आंसर है I was. Had you played cricket? yes, I had play cricket. Had you been playing cricket? Yes, I have been playing. I had been playing cricket. Okay, could you play cricket? Yes, I play cricket. हाँ, could किधर गया? Could you play cricket? Yes. Could you play cricket? ये Yes. ये 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 वर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये नहीं बोलने दे रहा आपको. Could you play cricket? Yes, I played cricket. इसको कि ये मैं बता हाईलाइट कर दिया, ये दुश्मन है, इसको पहचानो. ये नहीं बोलने दे रहा आपको. Could you? I could. हाँ जी, Could you का आंसर क्या है? I could. हाँ, I could. बाकी तो वैसे ही रहना है. The rest is the same. हाँ. हाँ. Yes, I could play cricket. बोलो. Yes, I could play cricket. हाँ, yes. Will you play cricket? Will you play cricket? Yes, I play cricket. Will छोड़ दिया. Yes, I will play cricket. हाँ. Will you be playing cricket? Yes, yes, I will you be. I will you be being cricket. I will you क्या होगा? Will you? I will. ठीक है. ये शुरू के दो, बाकी तो I सारा सेम है. बाकी सारा सेम है. ये दो वर्ड है बस. इनको चेंज करना. I will. ठीक है. I will. सर जी, जो यू हाँ. होगा उसको आई में तब्दील करना है. हाँ. I you I हो जाता है. I you हो जाता है. ठीक है. My your हो जाता है. Your my हो जाता है. ठीक. Okay. Yes, sir. Will you have played cricket? Yes, I have. Yes, I will have been play cricket. ये तो है ही पोजीशन. Will you have played cricket? Yes, yes, I will have be played cricket. I will have played cricket. हाँ. Will you have been playing cricket? Will you have been playing cricket? Yes, I will. Yes, I will have been playing cricket. Okay. Will you be able to play cricket? Yes, I will be able to play cricket. Okay. Is cricket played? Yes, cricket played. इस किधर Yes, गया? I cricket played. आई कहाँ गया? आई तो है ही नहीं. यू होगा तो आई होगा.
Is cricket played? Is cricket cricket is Yes, हो yes. जाएगा. Change is cricket into cricket is. बाकी rest is the same. Is cricket played? Cricket is played. Yes. Is cricket being played? Cricket is being played. Okay. Has cricket been played? Has cricket has been played. Okay, cricket has been played. Has cricket been being played? Cricket has been played. Can cricket be played? Cricket can be played. Very good. Was cricket played? Cricket was played. Very good. Shabash. Was cricket being played? Cricket was being played. Had cricket? सर जी ये जो आप आप सवालिया क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं हाँ इनको पॉजिटिव में आंसर कर रहा हूँ. हाँ. Question है अगर ये simple ये question है question will be like this. Okay, these are the difficult questions. Though they are simple, they are simple हैं but they are a bit difficult. कुछ difficult होते हैं and यहाँ पे अगर आप clear नहीं करेंगे तो speaking में you will have problem. ये आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है? They are 24 helping verb. I told you. मैंने उनको सेपरेट भी किया था, उनकी सारी साइंस भी मैंने डिस्क्राइब की थी, तो आप उसकी पुरानी वीडियोस देखें और जिसमें मैंने ग्रामर का बताया था, प्रेजेंट का बताया था और ये बताया था कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है. उसके बाद मैंने स्पीकिंग के मैंने पहले लिखे हैं, ठीक है? डू यू, आर यू, हैव यू वगैरह हैं. अभी मैं आगे में एक बार तो प्रैक्टिस होता है, तो ये नहीं बोलने दे रहे आपको, ठीक है कि नहीं? अगर ये इनका जो हिचकिचाहट है वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद यू विल फील better confident. Okay. Yes. Had cricket in being played. Cricket had been being played. Could cricket be played? Could cricket be played? Okay. Cricket could be played. All right. Will cricket be played? Cricket will be played. Good. Will cricket be being played? Cricket will be being played. Will cricket have been played? Cricket will have been played. Again, will cricket have been being played? Okay. Cricket will have been being played. Okay, should cricket be played? Cricket should be played. Okay, must cricket be played? Cricket must be played. So better, yeah. एक तो आपने you may see absent हो गए 2, 3, 4 days, तो उसका भी impact है और जब हम मुझे देर से ज्वाइन करेंगे तो you will experience this some loss of confidence. You will experience this. Okay, when you come to me, I fill up with all confidence. Okay, तो जब आप इधर उधर हो जाते हैं फिर कॉन्फिडेंस उसी तरह से रोल बैक कर जाता है क्योंकि आप उसको मेंटेन नहीं करते हो, you don't put your efforts on that. तो important things 3 शुरू के जो लेसन है फिर you should उसकी जो है करते रहें, तो उसकी प्रैक्टिस जो है, so then you will feel a little better. Okay, so do you? हेलो, जी हाँ जल्दी जल्दी आंसर दें. Do you?
Do you play cricket? You नहीं will बात play क्रिकेट वाला नहीं छोड़ो, क्रिकेट छोड़ दिया, प्ले भी छोड़ दिया। डू यू, यहाँ पे प्रॉब्लम है बेटा। Yes, I do. यस आई, ठीक है, आई डू भी सही है। डू यू, Yes. यस आई। आर यू, आर यू, आर यू, एक सेकंड सर, एक सेकंड। Are you? Yes, I. आगे, Yes, आई I एम। play cricket. ओ डियर, मैंने ये जो हाईलाइट किया है इन्हीं को यूज करो, छोड़ दो उसको, वो वैसे ही है, वो नहीं चेंज होते, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, इनका आंसर चाहिए, ठीक है। आर यू, आई एम, आर यू स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, ओके। Yes, I am student. हाँ, आर यू का क्या बनेगा, आई एम। बाकी स्टूडेंट में तो स्टूडेंट ही रहना था, उसने तो नहीं चेंज होना, ठीक है। ये दो वर्ड है, ये नहीं बोलने दे रहे, ठीक है। आर यू, यस आई एम। हैव यू, Have you? Yes, I have. यस आई हैव यू बीन, Yes, I have been. कैन यू, Yes, I can. डिड यू, Yes, I did. वर यू, I was. हैड यू, यस भी बोलो सर। Yes, I had. ओके, हैड यू बीन, Yes, I had been. कुड यू, Yes, I could. ओके, विल यू, Yes, I will. विल यू बी, Yes, I will being. विल यू हैव, Yes, I have. विल यू हैव, Yes, ये I विल, have. विल छोड़ दो, विल यू हैव। I have. ये क्या कह रहा है, इससे क्यों डर रहे हो, है ये वर्ड क्या कह रहा है आपको, व्हाई आर यू मिसिंग दिस, विल यू हैव। Will you have? हाँ, Yes, I have. यस, I have. विल क्यों नहीं कह रहे भाई, है। विल यू हैव, Yes, I will have. यस आई विल यू हैव बीन, Yes, I will have been. विल यू बी एबल टू, Yes, I will be able. एबल टू, ओके। ओके, इज क्रिकेट, Yes, is cricket. इनकी ऑर्डर चेंज करें, ये शफलिंग करें इनकी। इज क्रिकेट, क्रिकेट इज, Yes, cricket. सर जी, इनको क्रिकेट इज मतलब कि हेल्पिंग वर्ब बाद में क्यों लेके आना है? तभी तो आंसर बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही रहेगा वो, ठीक है। ठीक है। इस क्रिकेट Yes, तो, sir. इस क्रिकेट तो क्वेश्चन है, क्रिकेट इज करोगे तो आंसर बनेगा ना बेटा। इज क्रिकेट जी बीइंग, yes, cricket is being. हैज क्रिकेट बीन, Yes, cricket has been. हैज क्रिकेट बीन बीइंग, Yes, cricket has been. कैन क्रिकेट बी, Yes, yes, cricket can be. वाज क्रिकेट, Yes, yes, cricket was. वाज क्रिकेट बीइंग, Yes, cricket was being. हैड क्रिकेट बीन, Yes, had cricket been. Yes, cricket had been. हैड क्रिकेट बीन बीइंग, Had cricket. Yes, cricket had been. हैड क्रिकेट बीन बीइंग, ये हो गया। कुड क्रिकेट बी, Yes, cricket. Yes, could be cricket been. दोबारा वंस अगेन, कुड क्रिकेट बी, Yes, cricket could be. विल क्रिकेट बी, Yes, cricket be. Yes, विल का, cricket will be. विल क्रिकेट बी बीइंग, Yes, cricket will be being. विल क्रिकेट हैव बीन, Cricket will have been. विल क्रिकेट हैव बीन Yes, बीइंग, cricket will. Yes, cricket will have been being. ओके, शुड क्रिकेट बी, Cricket should. Cricket should. Cricket. Yes, cricket should be. मस्ट क्रिकेट बी,
Yes, cricket must be. Yes, yes, sir. Okay. So this is very important. अपने पिछले दिनों जो हम 2 3 4 दिन का गैप आने से ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी वो मिस हो गई है, ठीक है। उस वजह से फर्दर डिफिकल्टीज हैं, मुझे रिफ्रेश करने में वो दुश्वारी हो। चलें, लेट्स सी। वो इम्तिहान ये चुके वाले ये कर तो नहीं लिए थे उसने, वो इम्तिहान में पास हो गई है, आई थिंक ये कर लिया मैंने। और beneath 1 6 ओके, ये वही शहर है जिसकी पिछली दफा मैंने सैर की थी कि This is the same ये वही शहर है जिसकी मैंने पिछली दफा सैर की। हम्म, sir ki. हाँ, This दिस is the इज same city. This is the same city as I visit last विजिटेड, time. विजिटेड, आई सर वो विजिटेड, थी आप थी खत्म कर दिया मैंने, नहीं सैर की छोटी आ रही है एंड में, ठीक है, ये पास्ट है। विजिटेड, ठीक है ओके, जी। क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें गाली दी? Is this the same boy as abused you? हाँ, हम सेम और एज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये वही लड़की है जिसकी मैं बातें कर रहा था। This is the same girl as I was talking about. टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये वही आदमी है जिसने मेरी महबूबा को कत्ल किया, मारा। This is the same man as killed my beloved. तुम्हारी कार मेरी कार जैसी है। Your car is the same as mine. हाँ, उसकी उम्र तकरीबन सर कितनी? हाँ, सर यहाँ पे माई नहीं हम इस्तेमाल कर सकते माइन की बजाय कर सकते हैं ये, एज लेकिन कर सकते हैं, बट हम ये सेम और एज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एज माई एज हो सकता है, ठीक है। माई और माइन का डिफरेंस ये है कि अगर हम जिस चीज की जिक्र हो रहा है, अगर हम उस चीज का नाम लें तो फिर माई हो जाता जी है, अगर नाम नहीं लेते फिर माइन हो जाता है। मसलन अगर आपने ठीक एज को मेंशन करना है, इफ यू आर गोइंग टू मेंशन एज देन यू विल से माई एज, ठीक है। अगर आपने एज को जी मेंशन नहीं करना एज का, तो फिर आप कहेंगे यस एज माइन, ठीक है। फिर खाली जी माइन कहेंगे, माइन और माई एज एक ही चीज है, उनके लिए है, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक जब किसी चीज का नाम लिया जाए, मेंशन किया जाए तो फिर माई कहते हैं, अगर चीज का नाम नहीं लिया गया, मेंशन नहीं किया गया तो फिर माइन कहेंगे। उसकी तो तकरीबन सर यहाँ कार को मेंशन किया तो कार ठीक जैसी है। है हाँ, तो माइन माई कार नहीं ना कहा यहाँ पे, एंड में माई के बाद कार नहीं कहा गया, माइन कार नहीं होगा, ठीक है। ठीक है माई कार ठीक है, और अगर कार नहीं कहना फिर माई नहीं कहेंगे, ठीक है। एज माइन, ओके एज माई कार भी ठीक है, एज माइन दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा यस जी, यस क्लियर उसकी उम्र तकरीबन इतनी है जितनी कि तुम्हारी। हर एज इज अबाउट द सेम एज योर्स योर्स, इसमें भी योर्स लिखा हुआ है, एस डाल दिया, तो इसमें भी आगे जी एज मेंशन नहीं की गई, वो भी सेम प्रिंसिपल है, ठीक है। या तो जी योर सर एज हो या फिर योर्स, इस तरह से कर दें। जी एज लॉन्ग एज, जब तक ना ये भी इसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। एज लॉन्ग एज, जी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम यू हाँ, यू डोंट यू नीड वरी यू नीडंट वरी, ठीक है। यू नीडंट वरी, आपको जरूरत नहीं है, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें मेरे कहे पर अमल करना होगा। एज जब लॉन्ग एज यू तक, यू एज विल लॉन्ग एज यू हैव आर हियर, जब तक तुम यहाँ हो, you will have to act as I say एज आई से, यू विल हैव टू, आपको बात मानना पड़ेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं हो सकता है। I long as I am alive ये this मिस, cannot एस be done मिसिंग है, ये एज है, ठीक है। यहाँ पे एज है, ये जी गलती मिस्टेक होगी। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव दिस कांट बी डन, ये नहीं हो सकता। जी ठीक अच्छा है ये है, इसकी इंग्लिश बताए, मेरा घर।
मेरा घर, माय हाउस। माय हाउस। इतने झूठ, बहुत यानी बहुत से झूठ। मैनी लाइज। हाँ, मैनी मैनी लाइज या सो मैनी लाइज। जी। अच्छा जी। अमेरिका जाना इसकी इंग्लिश क्या है? अमेरिका जाना, गो टू अमेरिका। गोइंग टू अमेरिका, ठीक है। गोइंग नेम ऑफ प्रोसेस हो गया क्योंकि इसके साथ इज एम आर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर ये इज एम आर वाज वर बीबिन इनके अलावा अगर इंक फॉर्म आती है तो ये नेम ऑफ प्रोसेस बन जाती है, तो अमेरिका जाने का अमल है, ठीक है। जी जी। ओके। हाँ। साफ सुथरा शहर। नीट एंड क्लीन सिटी। नीट एंड क्लीन सिटी, ठीक है। और उसके जी बाद जी। है महंगी पेंट। एक्सपेंसिव पेन। एक्सपेंसिव पेंट्स, ठीक है। बहुत खूबसूरत। चलिए ये तो आई। ब्यूटीफुल। हाँ। एल्स और एल्स, ठीक है। तो ये है वो इतनी ही खूबसूरत है जितनी कि तुम्हारी बहन। शी इज एज प्रेटी एज योर सिस्टर। सिस्टर, ठीक है। मैं इतनी ही पर इंग्लिश बोल सकता हूँ जितनी कि तुम। आई कैन स्पीक इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज यू। एज यू। क्या तुम इतना तेज भाग सकते हो जितना कि मैं? कैन यू रन एज फास्ट एज यू मी। एज। कैन यू। यू गलत है यहाँ पे, यू मिस, यू तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कैन यू रन एज फास्ट एज आई कैन, ठीक है। और उसके बाद है मैं भी इतना ही कमाता हूँ जितना कि तुम कमाते हो। कैन यू आई आल्सो अर्न एज मच एज यू डू। यू। मैं भी इतना ताकतवर हूँ जितना कि तुम। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। आगे सो एज, ठीक है। ये है मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना कि तुम समझते हो। आई एम नॉट सो ब्लैक एज पेंटेड। एज पेंटेड, ठीक है। जितना लोग मुझे समझते हैं, ठीक है। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना कि लोग मुझे समझते हैं। आई एम नॉट सो ब्लैक एज पेंटेड, ठीक है। और उसके बाद अब वो इतने खुर्दगर्ज नहीं है जितने के हुआ करते थे। नाउ दे आर नॉट selfish as used to be. नाउ दे आर नॉट सो सेल्फिश एज दे यूज्ड टू बी। मैं इतना भूखा नहीं हूँ जितना कि तुम समझते हो। I am not so hungry as you think. ओके। वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितना कि वो अपने आप को समझती है। She is not so pretty as she thinks she is. शी इज, ठीक है। हाँ जी, मेरा घर। My home. माई होम, बड़ा घर। मेरा सेम एक्सरसाइज है, चलें अब आगे करेंगे। टू और टू, ठीक है। अम, जी। इतना ज्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती है। Tea is too hot to drink. हाँ, टू हॉट जरूर से ज्यादा ही गर्म है, पी नहीं जा सकती। टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, ठीक है। मोर देन से ज्यादा इनफ। ठीक। और ये जो है टू जो है वेरी के मायने में लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, नहीं करना चाहिए। टू जो है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये टू प्राउड, वो जरूर से ज्यादा ही मगरूर है। वेरी प्राउड, बहुत मगरूर है। ही इज वेरी हेल्पफुल, ये जो है वो बड़ी मददगार है। ही इज टू हेल्पफुल यानी वो जरूर से ज्यादा ही मददगार है, ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है, ठीक है। मैं ठीक ठीक। इतना छोटा हूँ कि लड़ नहीं सकता। I am too small to fight. हाँ, टू स्मॉल टू फाइट। आगे है क्या तुम इतने गरीब हो कि पेन नहीं खरीद सकते हो? Are you too poor to buy a pen? हम्म, वो इतना छोटा ना समझो कि आसानी से मारना, मुझे इतना छोटा ना समझो कि आसानी से मार सकोगे। Never too young to die.
ये इसकी मुताबिकत नहीं है इसके इंग्लिश की, ये कुछ और वर्ड है, ठीक है, ये कुछ और है। नेवर टू यंग टू डाई, यानी इतना छोटा नहीं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाए, इस तरह से मैंने, वरना अच्छी ट्रांसलेशन नहीं है। वो इतना सर मुश्किल है इसके पिछले वाले कि आसानी से नहीं एक्चुअली समझाया जा सकता, ठीक है। वो इतना यस मुश्किल है कि उसे आसानी से नहीं समझाया जा सकता है। इज टू यंग टू गो देयर अलोन। हाँ, ये भी ट्रांसलेशन इससे मैच नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई हुई है। वो इतनी दूर चली गई है कि वापस नहीं आ सकती है। शी इज गोन टू फॉर टू कम बैक। हाँ, एक्चुअली सर इसके ट्रांसलेशन कर देता हूँ, ठीक है। नेवर टू यंग टू डाई, कभी भी इतना छोटा नहीं कि मर जाए, ठीक है। और जी ही इज टू यंग टू गो देयर, वो अभी बहुत छोटा है, वहां नहीं जा सकता, ही इज टू यंग टू गो देयर। और के बाद है एक्चुअली सो दैट, ताकि, ठीक है। ये जी इतना आसान है कि एक बच्चा भी इसे कर सकता है। इट्स इट इट्स सो इजी दैट इवन ए चाइल्ड कैन डू। चाइल्ड कैन डू, ठीक है। मैं इतना जी मसरूफ था कि तुम्हारे साथ ना जा सकता, ना सका। आई वॉज सो बिजी दैट आई कुड नॉट गो विद यू। ओके, वो इतनी ही जल्दी में थी कि उसने मेरा इंतजार ना किया। शी वॉज सो हैज़ी दैट शी डिड नॉट वेट फॉर मी। हाँ, she was so hasty that she did not wait for me, उसने मेरा इंतजार नहीं किया। आगे है, मेरे ख्याल में तुम्हारी इंग्लिश इतनी खराब नहीं है कि तुम ऐसे बोल ही नहीं सकते हो। आई थिंक योर इंग्लिश इज नॉट सो बैड दैट यू कैन नॉट स्पीक इट। ओके, मैं इतना मजबूर हूँ कि तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ। आई एम सो फोर्स्ड दैट आई कैन नॉट एग्री विद यू। आई कांट एग्री विद यू, ठीक है, सकता। अच्छा जी, बहुत मसरूफ, जी बहुत मसरूफ, इसकी इंग्लिश। सो बिजी अच्छा जी, बहुत बारिश, सो बहुत, रेन हाँ, बहुत बारिश। सो मच रेन, मच। सो मच रेन, ठीक है, या ए लॉट ऑफ जी रेन। उसका घर। सर जी सो और मच में क्या डिफरेंस है? सो मच बहुत ज्यादा, सो इतना ज्यादा, ठीक है। ठीक। अच्छा जी, उसका घर। हर होम हर होम, और बहुत खूबसूरत। सो नाइस या सो ब्यूटीफुल सो या मच ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत गरीब। सो मच एग्री इज पुअर। सो मच पुअर, ठीक है, बहुत तेज। यस मच फास्ट सो मच फास्ट। सो मच फास्ट या सो फास्ट, ठीक है, बहुत मक्कार। वेरी कनिंग, कनिंग मकार की इंग्लिश। कनिंग, कनिंग, ठीक है, बहुत बहुत मशहूर। वेरी फेमस। वेरी फेमस, ठीक हो गया जी। आगे है वांट, नीड और समथिंग फॉर्म, ठीक है। तुम्हारा दिमाग ठीक होने वाला है, हम गुस्से में जब किसी को कह देते हैं, अच्छा, जब कोई नुकसान कर रहा होता है हम उसको डांटने के लिए कह देते हैं, हाँ जी। तुम्हारा योर दिमाग माइंड ठीक होना, योर माइंड नीड्स रिपेयरिंग, ठीक है। अब ये देखें, जी इंक फॉर्म जो है, इसके साथ इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है दिस इज द नेम ऑफ प्रोसेस, ठीक है। ठीक करने का प्रोसेस नेम है, ऑफ मरम्मत करने का प्रोसेस ठीक है, रिपेयरिंग, ठीक है। ये अब, यस ये वर्ब नहीं रहा, ये नाउन बन गया हुआ है। मेरी साइकिल को तेल मिलने वाला है। माय बाइक नीड ऑयलिंग। ऑयलिंग। हाँ, तुम्हारे कपड़े धुलने वाले हो गए हैं। योर क्लॉथ्स नीड वॉशिंग। वॉशिंग। मेरे घर की सफेदी होने वाली हो गई है। माय हाउस नीड वाइट वॉश विद वाइट वॉशिंग। ओके,
तुम्हें बस मार पड़ने वाली हुई हुई है। हेलो। just शरारती beaten him. हाँ, शरारती बच्चे को कहते हैं यू जस्ट नीड बीटिंग। कौन सीधा होने वाला जी है? कौन सीधा होने वाला I है ये? हु वांट्स who wants स्कूलिंग? schooling. हु वांट्स स्कूलिंग? किसकी स्कूलिंग होने वाली है? ठीक है, जी इसकी अभी पॉलिश होने वाली है। हाँ जी I it wants polishing yet. इट वांट्स पॉलिशिंग है, ठीक है, अभी इसकी और पॉलिश होने वाली है। अनलेस, जब तक के नहीं, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा जी जब तक के तुम हाँ ना करो। I will not I won't go unless you say yes. यस, ये वॉन्ट जो है ये विल नॉट भी होता है और ये वुड नॉट भी होता है, दोनों ही इसके मीनिंग निकाल लेते हैं। तो वॉन्ट जो है जहाँ दोनों की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वॉन्ट, आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब विल नॉट। अच्छा जी, वो नहीं बोलेगा जब तक उसे मारना पड़े। He won't speak unless he gets he beating. बीटिंग, ठीक है, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो जब तक अपनी हिचकिचाहट ना हटा लो। You cannot speak English unless you remove a hesitation. योर हेजिटेशन, बच्चे बात नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्हें गोलियां ना दी जाएं। Children do not speak unless they are given candles. हाँ, इसका बच्चे बात नहीं करते हैं जब तक उनको गोलियां दी जाएं, ना दी जाएं। चिल्ड्रन डोंट स्पीक अनलेस दे आर गिवन कैंडीज। हाँ जी, हमारा मुल्क, जी हमारा our मुल्क, country. हाँ, आम तलीम, तलीम आम Common नॉलेज, education. कॉमन एजुकेशन। Common education. ये मसला, अह, अहम मसला या मसला ये मसला, ये मसला। ये प्रॉब्लम अच्छा जी, इसके बाद इसमें को मशीन की सफाई। मशीन क्लीनिंग हाँ, क्लीनिंग ऑफ मशीन या मशीन क्लीनिंग। जी ओके, इनफ, ये जरूरी हद तक, ठीक है। इनफ क्या होता जी है? जरूरी हद तक। टू होता है जरूरत से ज्यादा हो जाना। जी बस जी बहुत, बस बहुत हो गई है। दैट्स एनफ दैट्स इनफ, ये पॉजिटिव मीनिंग में है, ठीक है। दैट्स इनफ हम क्या देते हैं, दैट्स बात का गुस्से में क्या देते हैं, ठीक है। वो यस हमें कहना चाहिए टू बात। ये है, कोई हमें खाने के लिए कोई चीज दे ही जा रहा है तो हम कहते हैं बस दैट्स इनफ, ठीक है, काफी है, मेरे लिए काफी है, ठीक है। टू यू नीड मोर, क्या आप और दूं? नहीं, दैट्स इनफ, काफी है, ठीक है, मेरी जरूरत पूरी हो गई है। तो अगर जो है जरूरत से ज्यादा ही हो जाए तो दैट्स टू मच, ठीक है। कोई जो है फर्ज करें यस तो हमें डांट रहा है तो हम कहते हैं दैट्स टू मच, बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, ठीक है, जी मैं तुम्हारी बदतमीजी से तंग आ गया हूँ, ठीक है। हाँ जी आई हैव हैड एनफ ऑफ योर रूडनेस, रूडनेस ठीक है। हाँ, ये इनफ जो है ये पॉजिटिव सेंस में यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जाता है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा है तो फिर हमें टू मच कहना चाहिए, और अगर हमारी जरूरत के मुताबिक है तो फिर इनफ कहना चाहिए, ठीक है। उसका जी, उसका मुझसे जी भर गया है। शी हैज हैड एनफ ऑफ मी, सर ऑफ, जी यहाँ पे दो वर्ड क्यों आ रही हैं हैज भी और ये हैड थ, ये थर्ड फॉर्म भी है, हैड सेकंड फॉर्म भी है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ठीक वैसे है जो हम कहते हैं ना ही हैड और शी हैड वगैरह जो है उसमें हैड सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे हाँ जी हैड से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये थर्ड फॉर्म है। अगर ये सेकंड होती तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, मैंने बताया हुआ है सेकंड फॉर्म नो हेल्पिंग वर्ब। तो इसके हेड से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, सेकंड तो नहीं हो सकती, फिर ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ठीक ओके, ये कम ही ऐसा यूज होता है लेकिन हो जाता है।
उनके पास काफी पैसे हैं। They have enough money. इनफ मनी, उनके पास दे हैव इनफ मनी। मैं इतना मजबूत हूँ कि लड़ नहीं सकता हूँ, कि लड़ सकता I हूँ। am I am strong enough to fight. हाँ, ये देखें ना, ये पॉजिटिव है, मेरे काफी एनर्जी है मेरे में। वो इतनी बहादुर है कि एहतजाज कर सकती है। She is brave. She is brave enough to प्रोटेस्ट, protest. ये इतनी साफ है कि देखी जा सकती है। It's clean enough to see. गुड। वो शादी के लिए काफी जवान हो गया हूँ, मैं शादी के लिए काफी जवान हो गया हूँ। I am young enough to marry. मैरी, वो इतनी खूबसूरत है कि उससे मोहब्बत की जा सकती है। She is beautiful enough to make love with. ओके गुड। अभी जो है मैं इसको मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, मैं लाइन पे आ जाऊंगा जल्दी, ठीक है। मैं वो चलिए दूसरी वीडियो स्टार्ट करने में, ये बहुत ज्यादा लेंथ हो जाती है, फिर वो प्रोसेस होने में देर लगती है। चलिए तो चलिए। ओके।